morning and welcome to today's lecture. Today's topic is your electric charges and field. Well, you have already been taught about the chapter previously, but then we have had with the old syllabus. Now we have to deal with the new revised CBSE syllabus. Okay. And therefore there have been many things which have been cut or which have been removed from the syllabus. We have to take only those specific things which are there in the syllabus. Of course, since you have already seen the elaborate video, let us just observe that what are the things that you have to know. Please go through the details of the video from the beginning to the end. Here there is no full stop, there will not be any attached notes. Therefore, you have to make your own notes. Okay, please. You have to ensure that each and everything have to be repeatedly seen, so that you can very easily observe and understand the matter. ये वही चैप्टर है जो कि आप लोग पिछले बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ चीज हम लोग वही चीज लेंगे जो कि रिवाइज CBSE सिलेबस में है, जो क्लास 12 के लिए है, 2020-21 के लिए. ओके. वेल, तो सबसे पहले टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे नाम से मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर हैव बीन मेनी एक्सपेरिमेंट्स प्रीवियसली 6,600 years back and so on. Rubbing of various things can lead to something to be charged. वो कैसे होता है कि जब एक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का अट्रैक्ट होता है किसी तरह से भी नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, तो हम लोग कह देते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं चार्जेस है. तो इसके मतलब क्या है कि चार्जेस इज डन ड्यू टू द रबिंग ऑफ टू बॉडीज. नंबर 1. ओके, देयर हैज ऑलरेडी बीन रिटन, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ फंडामेंटल चार्ज बिटवीन देम. ड्यू टू दिस बॉडीज बिकम चार्ज बॉडीज. दो बॉडी को आप किसी भी तरह से आप उसमें फ्रिक्शन तैयार करें. इफ यू रब टू बॉडीज, मे बी वन सॉलिड अदर जस्ट ए क्लॉथ. ओके, एंड देन विद द इफेक्ट ऑफ विच देयर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ चार्ज. व्हाट इज द चार्ज? दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल itself is electron. Okay, and therefore whenever there is an exchange of electrons between two bodies are said to be charged. Clear? Well, when you have a glass rod, and that is rubbed with silk, then glass rod becomes electropositive. That is, glass rod becomes positively charged, and the silk becomes negatively charged. Remember, silk becomes negatively charged. Similarly, when we have a plastic rod and that is rubbed with wool or cat fur, whatever we call, okay, or animal fur, then that plastic rod becomes negatively charged, and on the other hand, the wool or the cat fur become positive. Okay, this is the general idea about the charges. Therefore, you have seen that charges are those which is developed due to the exchange of electrons. दो बॉडीज के बीच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एक नया सिस्टम बन जाता है, तो बॉडी चार्ज बन जाता है. ओके, तो ये हो गए चार्जेस. इनके डिटेल्स पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हर एक चीज को ब्रीफ में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये तीन मेन प्रॉपर्टी होता है चार्जेस का। देखिए अगर आप लोग को ये दिमाग में आ रहा हो कि चार्जेस कैसे होता है, कैसे एक दूसरे को चार्ज हम कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी मेथड होता है। और देयर आर मेनी थिंग्स लाइक वन चार्ज बॉडी इज टेकन इन कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी, then there will be some redistribution of charges. Ultimately uncharged body becomes charged. Okay. हाँ, इसी तरह से आपने देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप से भी हम लोग चार्जिंग का पता लगा सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। Therefore, let us come to the main topic, that is the properties of charges. एक एडिटिविटी है, एक क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन है। एडिटिविटी में क्या मतलब होता है कि when we have a system of charges Q1, Q2, Q3, Q4, etc., then the net charge is always the sum of all the charges. Remember, this property of the thing could be called as additivity, that is charges can be added. In case one charge is negative, then we have to do accordingly. Suppose Q2 is negative, then we subtract this. Ultimately, we again have the sigma Q, that is net charge. That is charges can be added. This is first property. Second property is quantization. As the name implies, quantization means every charge can be represented as an integral multiple of a certain minimum charge, and that minimum charge is your charge of an electron. Always remember, the charge of a body is always an integral multiple of a certain minimum charge. That charge is the charge of an electron, and this is called quantization. Okay. Now let us come to the conservation. Conservation means if we have a body, that body is initially said to have no charge. If this body is initially considered to have no charge, but when it is rubbed with some cloth, okay, then what happens? After some time, the body becomes positive, and the same way the cloth become negative. That means till initially the net charge of the system was 0, and again here the net charge of the system will be 0. That means the total charge of the system is always conserved. That means we may neither increase the net amount of charge, nor we may decrease the net amount from the initial value. This comes in conservation of charges. Okay, this is additivity, quantization, and third one is this is conservation of charges. This is all about the basics of charges. Then we move to Coulomb's law, that is force between two point charges. Force between two point charges. Okay, that means suppose we are having 2 point charges Q1 and Q2, and the distance between them is center to center distance is R. According to the principle of Coulomb, that is Coulomb's law, what we call as Coulomb's law. Coulomb's law of electrostatic forces between two charges. Okay, what is that rule? What is that law? Law states that whenever we have two charges placed very close to each other, then there exists some electric force between them, and that force is directly proportional to the product of charges, and it is also inversely proportional to the square of distance between the charges.
ठीक है। तो दो पॉइंट चार्जेस अगर आप ले ले तो उनको मान लीजिए किसी भी एरिया में है, जब वो वैक्यूम में है या एयर में है या वो किसी मीडियम में रखा है, डायरेक्टली मीडियम रखा है, कैसे भी रखा है मान लीजिए, उस मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नंबर 1. नंबर 2, it is inversely proportional to square of distance between the charges. ये आपका एक जनरल आइडिया आ गया। तो इनको अगर मिला ले तो F is proportional to Q1 Q2 upon R square, एक कांस्टेंट भी आएगा। We must have a constant, that is electrostatic constant Q1 Q2 upon R square. दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को भी मैं खोल दूं तो उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं। इसके वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, वेल अब यहाँ पर एक टर्म कूलम आ गया। कूलम आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे कूलम क्या है। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर into second. Well, now after knowing this, here we can see this is a constant K. It is called electrostatic constant, and उसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 एक फिजिकल टर्म है, रिमेंबर, है तो कांस्टेंट, लेकिन ये कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो है नहीं, तो इट इज डेफिनेटली एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज डेफिनेटली अ कांस्टेंट। व्हाट इज दैट कांस्टेंट? दैट इज नोन एज परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे नाम से मतलब है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि बिटवीन इन एनी मीडियम देयर इज ऑलवेज some permissible limit of electric lines of force. That is, one medium can allow certain fixed amount of electric field to be present there, neither more not less. Okay, and that permissible limit is not any mathematical things, but we call it as permittivity, mean permeability. It is not permeability in that we use in magnetism, but it is just the permissible limit of electric lines of force in any medium. If that medium is vacuum or air, we call it as free space. Remember, अगर वो medium vacuum हो या air हो तो उसको हम लोग कहते हैं free space. Okay? और permittivity को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तो अगर इसका वैल्यू निकालने दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? It is 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट जस्ट पलट जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ 8.85। यू कैन सी 1/4 पाई इंटू दिस थिंग आप करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको यही मिलेगा 9 × 10⁻⁹। रिमेंबर, इसका ज़्यादा यूज है नहीं, हम लोग मोस्टली इसी को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। दैट इज वाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स KE। ठीक है, तो ये तो था मेरा, ये कांस्टेंट को लेकर मुझे इतना कुछ कहना पड़ा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ ये सब चीज को। ओके, वी हैव सीन दिस इज फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या है कि कूलम्स लॉ कैन इवन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे वेक्टर फॉर्म
Coulomb's law. Remember, here suppose we have to have these 2 point charges q1 and q2, and distance between them is just r. In terms of vector we call it just vector r. ठीक है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर कोई फिक्स ओरिजिन से r1 और r2 दिया है. अब देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि q2 पर टोटल q1 कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे? हाउ वी राइट F21. हम इसको कैसे लिखेंगे? F21. तो F21 में जो कि आपके Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन इसका मेन फोर्स है, धक्का देगा. दोनों रिपल्सिव फोर्स है, तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा. मैं मान कर चलता हूँ कि नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है. ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा? दिस कुड बी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर विथ सम यूनिट वेक्टर r. यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करें. 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r क्यूब, एंड दिस इज योर वेक्टर r. इस डायग्राम से क्या दिखता है? वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2. देखो r इक्वल्स टू r2 माइनस r1. इस डायग्राम से आपको ये बिल्कुल ऑर्डिनरी वेक्टर सम के हिसाब से देखते हैं, ये आ गया आपका. तो जब ये आ जाएगा तो हम जहाँ ये वेक्टर है तो उसको हम लोग इसको हम लोग r12 कह सकते हैं, या यहाँ पर F21 लिखा है, तो यहाँ पर मैं इसको r21 लिख दिया. तो r2 माइनस r1, यहाँ पर ये पॉइंट्स को दिखा रहे हैं जो कि फोर्स बिटवीन 1 and 2. इट इज फोर्स ऑन Q2 फ्रॉम Q1. एक दो बोथ आर पॉजिटिव. अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा. मैं मानता हूँ कि Q1 को ज़्यादा मान के चलता हूँ, तो इसका रिपल्सन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तभी Q1 से Q2 की और नेट फोर्स है, ये भी धक्का देगा इधर, बट this will be dominating. Q1 is greater than Q2. And similarly, if they have unlike charges, then they will be attracted at force of attraction. तो accordingly इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा. जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके तरफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा. रिमेंबर, अगर ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो तो हमेशा बड़े वाले चार्ज की तरफ आपका नेट फोर्स होगा, और अगर ये फोर्स रिपल्सिव हो तो हमेशा बड़े वाले से दूर की तरफ, बाहर, अवे फ्रॉम द बिगर चार्ज. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. तो ये है वेक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ, एंड यू कैन हैव दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड इससे आप अलग अलग सिचुएशन में आप ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं. तो इस तरह से हमारा कूलम्स लॉ लगभग खत्म हो गया. हम लोग नेक्स्ट टाइम में कुछ और चीज़ देखेंगे, तो और हर चीज़ को छोटे छोटे करके ब्रीफ नेचर करेंगे. आपको बहुत अच्छा लगेगा. जो आप लोग क्लास में क्लास नोट्स जब आपको दिया जाएगा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होगा एनसीईआरटी के प्लस दूसरे बुक से, तो उनको आप जरूर लगाएं. क्वेश्चंस को आप कॉपी में जरूर लिखें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल बी यूजफुल इन द एग्जाम्स. ओके, थैंक यू.